Hello everyone. Next topic is resonance. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजोनेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, resonance is the condition in a circuit containing at least one inductor and one capacitor when the supply voltage and supply current are in phase. किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट अगर सेम फेज में होता है तो दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. As we know that when the voltage and current are in same phase, that means angle difference between voltage and current is 0 degree. That means cosine of that angle, that is power factor of the circuit, will be unity. So we can say that resonance is the condition at which circuit becomes purely resistive or power factor of the circuit becomes unity, और वी कैन से दैट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज. ठीक है, तो यानी रेजोनेंस में क्या होता है, वो वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज और पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी और circuit becomes purely resistive. ठीक है, circuit becomes purely resistive. So there are different method to explain the resonance. There are two types of resonance. First one is series resonance. Series resonance. In case of series resonance, resistance R, L and C, inductor L and capacitor C are connected in series. So suppose we have a RLC series circuit. This is R, L and C, and this series RLC circuit is connected across AC supply. ठीक है, that is plus minus V AC supply voltage, and this one is the current I. ठीक है, ये है आपका रेजिस्टेंस R, L, C. ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज VR, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL एंड अक्रॉस कैपेसिटर इज AC. ठीक है, एंड द impedance of the circuit is Z. VR, VL, VC, R, LC, Z, I. जो ये वोल्टेज होता है, वोल्टेज सोर्स, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स होता है. साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स विद फिक्स्ड एम्पलीट्यूड, with fixed amplitude and variable frequency. मतलब जो हमने AC सोर्स लिया है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर रहे हैं. ठीक है, तो फॉर्म द सर्किट डायग्राम. करंट I is equal to, from the circuit line, current I is equal to V by Z. Current I is equal to V by Z, where Z is equivalent impedance
of the circuit, equivalent impedance of the circuit, and Z is equal to, can be written as R plus J omega L plus 1 upon J omega C, or we can say that for Z is equal to R plus J omega L minus J upon omega C, or Z is equal to R plus J omega L minus 1 upon omega C, where XL is equal to omega L and XC is equal to 1 upon omega C. ठीक है, नाउ I is equal to V upon Z, तो V upon Z की जगह आप क्या लिख सकते हो, R plus J XL माइनस XC, ठीक है, or we can say that I is equal to V upon R plus J X, where X is equal to XL minus XC, ठीक है। Now अब हमें क्या करना है, इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। किसी को रेफरेंस लेना है तो आपको पता है सीरीज सर्किट में क्या रेफरेंस फेजर क्या रेफरेंस लेते हैं, करंट इज टेकन एज रेफरेंस I0, ठीक है। दिस इज सेम फेज में क्या होगा, VR, ठीक है, ये आपका होगा VC, ये होगा आपका VL, ठीक है। अगर VL इज इक्वल टू VC है, VL इज इक्वल टू VC, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, VL और VC कैंसिल आउट हो जाएंगे। VR कितना होगा यहाँ पर, VR इज इक्वल टू कितना है IR, VL इज इक्वल टू कितना है IXL, और VC इज इक्वल टू कितना है IXC, ठीक है। तो VL इज इक्वल टू VC हो जाएगा, तो VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V, तो यानी if VL इज इक्वल टू VR then V इज इक्वल टू VR, और V is the supply voltage and I is the supply current, both are in phase, that is the condition of resonance, ठीक है। तो VL is equal to क्या लिख सकते हो, IXL is equal to I, VL is equal to VC, so IXC, तो यहाँ से I से कैंसिल, तो यानी XL is equal to XC, तो यानी at resonance inductive reactance is equal to the capacitive reactance. Now XL is equal to XC, XL को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा L is equal to 1 upon ओमेगा C, ठीक है। हमने माना लेट ओमेगा नोट बी द फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इस फ्रीक्वेंसी पर आपका ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालोगे तो आ जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, और यहाँ से निकल के आ जाएगा ओमेगा नोट इज इक्वल टू अंडर रूट LC। ओमेगा नोट को क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई F नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, और यहाँ से आप लिख सकते हो F नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। तो दिस इज द resonant frequency at which circuit becomes purely resistive. Yeah, this is the condition of resonance, where omega naught is the resonant frequency in radian per second, F naught is the resonant frequency in radian per hertz, ठीक है। तो F naught is in hertz और omega naught in radian per, ठीक है। अब यहाँ से देखिए
एट रेजोनेंस यानी एट रेजोनेंस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी था, और रेजोनेंस पे क्या होगा, एट रेजोनेंस पे क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल एक्सी बराबर है तो ये हो जाएगा 0 यानी आर। तो यानी एट रेजोनेंस, और ये चीज़ कितना होगा मिनिमम होगा मैक्सिमम, उस टाइम इम्पीडेंस कितना होगा मिनिमम, क्योंकि जो एडिशनल टर्म है वो 0 होने से जो नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है वो इक्वल टू आर हो गया, और वो दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं एट रेजोनेंस इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस दैट विल बी द मिनिमम। नाउ आई नोट इज इक्वल टू, आई नोट अगर आप निकालते हैं तो v इज इक्वल टू जेड था, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है z इज इक्वल टू हो जाएगा r, तो r मिनिमम है तो आई नोट कितना होगा उस टाइम मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कितना होगा मैक्सिमम। ठीक है, करंट विल बी मैक्सिमम। नाउ वी डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं सीरीज रेजोनेंस के, हमने जो अभी तक स्टडी किया है वहाँ से हमने क्या क्या सीखा। पहले तो हमने सीखा कि एट रेजोनेंस मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ठीक है, द जे टर्म ऑफ द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस इज 0 सो दैट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस हैज़ अ प्योर रेजिस्टिव वैल्यू। यानी रेजोनेंस पे क्या हुआ है, जे टर्म इज 0 देयरफॉर जेड इज इक्वल टू आर। ठीक है, पहला तो हमने ये देखा। दूसरा हमने कंडीशन क्या देखा है, एट रेजोनेंस द सर्किट इज रेजिस्टिव। ठीक है, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट आर इन फेज, द पावर फैक्टर इज द यूनिटी। जब जेड इज इक्वल टू आर होगा तो सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव, दैट मीन्स वी एंड आई आर इन फेज, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन्स पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। दूसरा हमने ये देखा। तीसरा हमने क्या देखा, equivalent impedance having minimum value and current drawn by the circuit from input voltage source has the maximum value. At resonance at omega is equal to omega naught current Z is equal to R, ये कितना है मिनिमम, therefore current drawn by the circuit will be maximum। ठीक है, current will be maximum। हमने एक और पॉइंट देखा फोर्थ, at resonance magnitude of the voltage across the inductor and capacitor are equal but are phase shifted by 180 degree so that net voltage across the LC combination has a 0 value। हमने ये देखा कि जो आपका VL होता है और VC होता है ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, और V इज इक्वल टू VR होता है और सेम फेज में I होता है। ठीक है, तो यानी वोल्टेज across LC combination is equal to 0। क्यों? क्योंकि नेट वोल्टेज दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज कितना है 0, तो सारा का सारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो कहाँ पेयर हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू VR, यानी सारा का सारा वोल्टेज कहाँ जा रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा है। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट। इस पॉइंट में देखिए आप, तीन कंडीशन है। पहला है एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट, दूसरा है ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नोट, और तीसरा पॉइंट है ओमेगा लेस देन ओमेगा। यानी पहला एट रेजोनेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप करते हो। तीसरा जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी आप रखते हो। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा। इस केस में सर्किट इज रेजिस्टिव, सर्किट में सिर्फ क्या बचता है उस टाइम, रेजिस्टेंस, और पावर फैक्टर कितना होगा रेजिस्टिव सर्किट का 1। ठीक है, इस केस में क्या होगा, सर्किट इज इंडक्टिव,
सर्किट इज इंडक्टिव, तो पावर फैक्टर कितना होगा, लैगिंग। किस एंगल से लैग कर रहा है वो एल पे डिपेंड कर रहा है। इस केस में क्या होगा, सर्किट इज कैपेसिटिव, मतलब पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, थैंक यू।